बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। और जैसा कि चल रहा है कि वी आर डिस्कसिंग द सब टॉपिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, what are the things which are provided by nature, and the living organism can make the use of same. You know that today's topic is oxygen cycle. Oxygen cycle in the atmosphere means we will study over here that the universal law, that is nothing can be created and nothing can be destroyed, but it can be changed from one form to another form. The universal law is applicable over here. What do we mean by cycle? Cycle से क्या मुराद है? साइकिल एक किस्म का है कि दोबारा से वापस आ जाता है। जहाँ से चला मीन्स जहाँ से शुरू हुआ फिर वहीं पे हो जाता है। कहीं जगह पे कुछ खात्मा नहीं, यहाँ से चला होते होते फिर दोबारा जो है वो उधर ही पहुँच जाता है। जिस तरह का ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है इज नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन। We respire the process of breathing in all living animals. Means we can say that those organisms which are living, they can respire. They need air for breathing purposes. As far as the living organisms are concerned, all the living organisms can be classified into two categories in broadly. अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी जिंदा चीजें हैं उनको दो क्लासेस में किया जाता है डिवाइड। एक तो हो गया प्लांट किंगडम, अदर इज एनिमल किंगडम। अदर इज एनिमल किंगडम। जहां तक प्लांट किंगडम का सवाल है, जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है, तो दे आर लिविंग एंड एनिमल्स तो हैं ही। और जहां तक प्लांट्स का ताल्लुक है तो प्लांट्स आर आल्सो लिविंग। इट मींस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन जनरल आर दैट they can grow, they can take food, they can respire, they can reproduce. Means उनको वो बढ़ते हैं, वो चलते हैं, फिरते हैं। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बट सिंपल वे कि हमारा एक प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है। देयर आर प्लांट्स एंड देयर आर एनिमल्स। इन बोथ द केसेस ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। Means the process of respiration in these animals, because the human being, we are also included in the animal kingdom. No doubt the human beings are the social animal. हम भी एनिमल हैं, हम भी जानवर हैं, लेकिन we can हम जो है हमको सोशल एनिमल बोल जाता है because we keep society. No other animals can live in a society as we. हम जिस तरह से अपने समाज में रहना है, we have to adjust ourselves in a society. We can perform such activities which are best for the society, and after then we can be adjusted well in that society. Suppose we are doing anti-social activities, we are not fit in a society, we can do the anti-social activities, means then one cannot be adjusted in a society. And this is a life, this is a struggle for existence, and without society we cannot be. Means we depend upon the other human beings, either one way or the other ways. There are some necessities, means we will not go
and discuss the subject matter of that, but simply we can say that the plant kingdom and animal kingdom, and the relation, they are both related with the term oxygen cycle. जो भी ऑक्सीजन है, जैसे हम सांस लेते हैं और सांस हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ये हम जानते हैं कि 21% ऑक्सीजन जो है, बिकॉज एटमॉस्फेयर विच इज considered, which is known as the mixture of the gases, and we know that there is 78% of nitrogen and 21% of oxygen, then other gases are very in small amount. But जहाँ तक बात ऑक्सीजन की है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो है इट इज 21%. इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म. ये एक एलिमेंट की सूरत में है, एक जो है वो एलिमेंट की सूरत में हमको है, एक गैस की सूरत में हमको मिलती है, और ऑक्सीजन है जो हम यहाँ से लेते हैं एटमॉस्फेयर से. इट मीन्स एटमॉस्फेयर जो है इट कंटेन द ऑक्सीजन एंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज 21%. फिर जो है ये इट इज समवेयर इट इज इन अ मिक्स्ड स्टेट. देखो यहाँ एटमॉस्फेयर में इट इज इन अ फ्री स्टेट, बट जहाँ तक हम बात करेंगे पानी की, H2O में भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन इज इन ए मिक्स्ड स्टेट, इट इज नॉट इन ए फ्री स्टेट. जहाँ तक हम पानी की बात करें तो पानी जो है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर कंसिस्ट ऑफ H2O, इट मीन्स 2 atoms ऑफ हाइड्रोजन and 1 hydrogen of oxygen combined together and they form water molecule. But the oxygen is there. Oxygen जो है is there, oxygen is present in water, but it is not in a free state. It is not enough for this respiration. It is not fit for. पानी जो है, पानी में ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन ये इसमें हम सांस नहीं ले सकते, बिकॉज द मेजर पोर्शन ऑफ दिस वाटर इज हाइड्रोजन. सो वी कांट टेक दिस ऑक्सीजन एज इट इज इन ए मिक्स्ड स्टेट. बट व्हाट अबाउट द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स? जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे ले लेते सांस? दे आल्सो नीड ऑक्सीजन, बट जितना उनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हैं, सपोज दे आर डाउन आउट ऑफ वाटर, उनको पानी में से बाहर निकाला जाएगा, दे कैन डाई बिकॉज देयर सिस्टम इज सच दैट दे नीड ऑक्सीजन बट नॉट इन लार्ज, बट नॉट इन फ्री स्टेट. दे टेक ऑक्सीजन बट दैट इज इन ए मिक्स्ड स्टेट. उसके अंदर उनका भी अलग सिस्टम है, देयर इज ए गिल, एंड गिल जो है वो स्टोर करते हैं पानी को, और फिर जो है इसको कहीं न कहीं फिर वो उस सिस्टम में लाया जाता है. लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि फ्री एंड मिक्स्ड स्टेट, जहाँ तक ऑक्सीजन की बारी आ गई, इट इज इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर. या जब रेस्पिरेशन हुई, मीन्स respiration involved the process of inhaling and exhaling, inspiring and expiration. एक सांस का लेना, दूसरी किस्म का छोड़ना. जैसे we can take oxygen and breathe out carbon dioxide. We can take oxygen from the atmosphere and we can breathe out the carbon dioxide in the atmosphere. It means atmosphere also contain carbon dioxide and atmosphere also contain oxygen. तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमने जो सांस लिया वो भी एटमॉस्फेयर से लिया, और जो छोड़ा वो भी एटमॉस्फेयर में ही छोड़ा. इट मीन्स व्हाट इज देयर, वहाँ कैसा सिस्टम है? तो क्वेश्चन अराइजेस दैट सपोज इट इज अगेन इन ए मिक्स्ड स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, then how we take, how the animals can take oxygen only? इसके लिए
एक आपको दोबारा से इसमें हम नहीं कहेंगे कि वी कैन टेक द ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वी कैन टेक द फॉल गैसेस, इसमें जो है वी कैन टेक द मिक्सचर ऑफ गैसेस, बट देयर जो है देयर इज ए परमिएबल मेम्ब्रेन, वो परमिट करता है हम उसी जैसे छाननी में हम चाय को स्ट्यू करते हैं, वो उसको एलो करता है टू गो फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू, बाकी जो भी कचरा है जो मोटा है उसको जाने नहीं देता है। सेम ऐसे ही हम सांस को लेते हैं, पूरे इस मिक्सचर को हम अंदर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक वो जो है एक वहाँ पे जो फिल्टर सिस्टम है, फिल्ट्रेशन का सिस्टम है, दैट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, and filter paper is there that can allow the only oxygen can allow to go inside, and then again जो कचरा है उस पे बैठ जाता है और अंदर से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और वो इन जो है ऑक्सीजन को परमिट करता है और आउट कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर आता है अगेन वो मिक्स होके फोर आए, फिर हम कह सकते हैं हम खालस ऑक्सीजन को नहीं लेते, वी कैन टेक फोल आयर एंड वी कैन ब्रीथ आउट फोल आयर, और वो ईयर जो है वो पास होती है और एक जो सिस्टम है हमारा फिल्ट्रेशन का अंदर से एक निजाम वहां पे रुक जाती है। मीन्स अभी तक आपने देख लिया कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी कैन टेक ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन हम यहाँ से लेते हैं और रेस्पिरेशन के जो है रेस्पिरेशन जब हम छोड़ते हैं तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड के सूरत में उसको छोड़ दिया, लिया हमने O2, छोड़ हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, फिर दोबारा अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जाएगा और एटमॉस्फेयर से इसे फिर फोटोसिंथेसिस में यूज कर जाएगा। अब जो है एक इकोलॉजिकल बैलेंस हम बात कर रहे थे कि अगर ये बैलेंस नहीं होता फिर तो एक की मात्रा, एक की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सपोज अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते रहते, अगर इसका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, देखो कैसा निजाम है कि प्लांट्स कैन टेक कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड एनिमल्स कैन टेक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब ये जो लेता ऑक्सीजन है एनिमल, ये लेता कार्बन डाइऑक्साइड है, एनिमल्स कैन ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ले लेता है और ये जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसके अंदर, C6H12O6 शुगर बनेगा, दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। देन एक तो ऑक्सीजन लिबरेट होगा एटमॉस्फेयर में, वो ऑक्सीजन अगेन हम लेते हैं और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एज ए फूड मटेरियल बना इन प्लांट्स में तो उसको भी हम ले लेते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द कम्प्लेक्स फूड सबस्टेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। तभी हम रेस्पिरेशन डज नॉट मीन taking one type of air and breathing out another type of air. Simply breathing involves, breathing जो है, breathing is different from that of respiration. What is a respiration? Is a process by which the complex food material is broken down inside the body and the complex substances are also built inside the body. ये जो breakdown होता है, ये हाजमा होता है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे जो खाए हुई चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है और हमारे अंदर खून, रफेज, दूसरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल दीज आर फॉर्मिंग। मीन्स इट इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। दिस रेस्पिरेशन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द कम्प्लेक्स फूड मटीरियल इज broken down into the simpler components, then from simpler components a complex substance is again made. जैसे आंसू बनते हैं, पसीना बनेगा, खून बनेगा, ये सारा उसी फूड मटेरियल का बनता है। लेकिन एक सिस्टम जो है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, रेस्पिरेशन का सिस्टम है, इसी सिस्टम से जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर ऑक्सीजन जो है
इज सपोर्टर फॉर बर्निंग, ये जलने में मदद करती है, और दैट जो डाइजेशन है इट इज आल्सो बर्निंग बट इट इज सम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ऑरिजिनल बर्निंग, जिससे कोई हीट लाइट नहीं, लेकिन ये भी इस खाने को पकाता है, इसको जलाता है पेट के अंदर। मीन्स ये जो ऑक्सीजन जो है इट इज इन ए कंबाइंड स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज इन ए फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर। ये जब पानी के साथ इसका बनता है, जब इसका कंडेंस्ड होते हैं दीज क्लोड्स इनटू वाटर, इट मींस देन अगेन ऑक्सीजन इज अ पार्ट ऑफ दैट वाटर। फिर फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ पे जो है वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, फिर दोबारा इवापोरेशन भी होता है। मींस दिस इज अ साइकिल। हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्रस्ट के अंदर भी है। अगर हम मींस ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, ये मेटल जो है सिलिकॉन है, कार्बोनेट्स है, सल्फाइड्स है, नाइट्रेट्स जो है ये इसके अंदर बनाते हैं सॉइल के अंदर मेनली। फिर मिनरल्स आर आल्सो एसेंशियल, मिनरल्स भी जो है वो एसेंशियल हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये सारे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं न कहीं ऑक्सीजन इनके साथ मिला हुआ है, जमीन के अंदर भी मौजूद है, ऑक्साइड की सूरत में है, मिनरल की सूरत में, मींस कहीं न कहीं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साइकिल मेंटेन द लेवल ऑफ जो है ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। देखो ऑक्सीजन है ये मेंटेन रखता है। जैसे हमने बात की कि एनिमल्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, हम गैस इसको एक्सपायर करते हैं और प्लांट्स ले लेते हैं, फिर प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को एक्सपायर करते हैं और एनिमल्स इसको ले लेते हैं, और एटमॉस्फेयर जो है ये एटमॉस्फेयर में इसकी परसेंटेज जो है वो मेंटेन रहती है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में जो है यूज्ड होता है 3 प्रोसेसेस में। जो एटमॉस्फेयर जो है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका यूटिलाइजेशन 3 तरीकों से होता है। नंबर 1 जो है कंबस्शन में होता है। कंबस्शन मीन किसी कोई भी चीज जब जलती है किसी भी जलने के सिस्टम में, सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन इज ए सपोर्टर फॉर बर्निंग, ये सपोर्ट करती है जलने में। और दूसरा जो है फर्स्ट जलने में मदद देती है, सेकंड जो है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का यूज होता है, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। थर्ड वन जो है इसका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड क्रस्ट में होता है, जमीन के अंदर होता है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो ये 3 तरीकों से जो भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको कंबशन होगा किसी चीज का जलना, और जलने के लिए हवा का होना लाजमी है। विदाउट ऑक्सीजन नथिंग कैन बर्न। अगर मींस ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज हमारी जल नहीं पाएगी। फिर देन जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसको रेस्पिरेशन, एनिमल्स जो हैं वो इसको लेते हैं ऑक्सीजन को, इंसान हैवान तमाम एनिमल्स जो है वो लेते हैं और वो छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है। इट मीन्स वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका यूटिलाइजेशन बाय द एनिमल्स बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। देन जो रिमेनिंग है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में से ट्रांसफर होकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को दोबारा से जमीन में जाना पड़ता है बाय दिस प्रोसेस। जो है इसको कार्बोनेट की ऑक्साइड्स के तौर पे भी ये जमीन में पाई जाती है। और फिर जो है जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन जो है वो आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन होता है और ऑक्सीजन का इवॉल्व, ऑक्सीजन निकलते हैं उससे, और उससे जो है वो जो है ऑक्सीजन का फिर दोबारा से साइकिल बनता है। और ऑक्सीजन जो है इट इज ये जो पॉइजनस है ऑक्सीजन कुछ फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए पॉइजनस है एज बैक्टीरिया। और फिर 2 एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन
the process of nitrogen fixing bacteria does not occurs in the presence of oxygen. और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, जो हमारी नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78%, that can be fixed by the nitrogen fixing bacteria for the plants. उनके रूट नोडुल्स होते हैं, उन राइजोबियम उसका बैक्टीरिया है जो इसको फिक्स करता है. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका भी वो नहीं बनता है. तो मीन्स आप समझ गए होंगे ऑक्सीजन साइकिल को. तो ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर क्या है, ये एक साइकिल है. कभी हम छोड़ते हैं, कभी लेते हैं, कभी प्लांट्स छोड़ते हैं, कभी प्लांट्स लेते हैं. बहुत सारे गैसेस का रेस्पिरेशन होता है. तो मीन्स ये हो गया जो है बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस ऑक्सीजन साइकिल. मीन्स दिस इज एनफ फॉर टुडे.